ओम शांति। ओम शांति। Good evening everyone. Welcome to all of you who have come here for Sunday evening talk. Who all are coming here for the first time? Okay, welcome again. So for the benefit of the first time visitors, I would like to give brief introduction about Brahma Kumari's organization. We are a socio-spiritual international organization aimed at personal transformation through Raj Yoga meditation and thereby bringing world renewal. We are spread across 130 countries with 4,000 centers. The organization was founded in 1937, headquartered at Mount Abu, Rajasthan. We provide our services through different wings like education, IT, media, sports, judiciary, etc. etc. Shanti Sarovar, this premise where we are sitting here, is the biggest retreat center of South India. It is spread across 34 acres of land, so please do explore the space in terms of meditation rooms as well as museum, auditorium. And we conduct here many workshops, seminar, meditation camps regularly. So subscribe for those events. You will get the notifications of those events. Coming to the topic of today's talk, the secret of karma philosophy. So we all know the old proverb. हमारी दादियाँ कहते थे, right? As you sow, so you reap. जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल पाएंगे. But what is actual karma? Is this only actions we do or the words we say? Or is it much deeper, much beyond than those? So how can we do the positive karma? What is the right filter to judge that our karma is good or bad, or what will be the effect or result of this karma? So we will be learning all these things from BK Suraj Bhai ji. So please welcome Suraj Bhai ji on stage. Suraj Singh Bhai ji has started his spiritual journey in 1977. Bhai ji has surrendered his life in the World Spiritual University for Godly Services in 1985. So he is with us for more than 35 years in Shanti Sarovar and in the spiritual knowledge more than 50 years. So he has a very rich experience. He is a senior Raj Yoga faculty. So he is civil engineer by profession. So we will be learning from Bhai ji about the secrets of karma. So over to Bhai ji. Okay. ओम शांति. सभी प्यार से बोलो ओम शांति. फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट से बोलो ओम शांति. फ्रॉम द चेयरफुल फीलिंग से बोलो ओम शांति. वाह, आपने कमाल कर दिया. एटमॉस्फेयर ही देखो खुशी से छा गया. इतने आप सब इंजन आए हो, कितनी खुशी के वाइब्रेशन आप दे रहे हो. मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ इस संडे इवनिंग में सबके साथ अपने विचार और भावना थोड़ा शेयर करने का जो मुझे स्वर्णिम अवसर मिला. आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गैदरिंग्स, है ना. परंतु उससे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ. ठीक है. क्यों स्वागत करता हूँ कि कहाँ अपने बिजी वर्ल्ड से आप कितना आपाधापी से आते हो. हर दिन संडे को आकर के ये टॉक प्रोग्राम से आप सब लाभ लेते हो. खुशी होती ना. भले आए किस मूड से आते हो, कौन सा टेंशन हरी भरी केयर लेकर के आते हो, परंतु यहाँ से कैसे फील करते हो जाते समय.
देखो, क्योंकि जितना आप अपने जीवन को इस सब पॉजिटिविटी से, सुख से, शांति से, आनंद से, कुछ इनर सेटिस्फेक्शन को लेकर के जाओगे तो आपको लगेगा हाँ भाई कुछ न कुछ तो मिला, कुछ स्वाद आ रहा है। कोई खाना खाते हो, अगर उसका स्वाद ही नहीं है, बीटर है, तो क्या करते हो? कुछ मुझे मज़ा नहीं आया। नहीं, जब हम ऐसे स्वाद आता है तब बोलते हो मज़ा आ गया आज। नहीं, तो इस प्रकार हर चीज़ें हम जीवन में कुछ न कुछ प्राप्ति की अनुभूति के लिए हम आते हैं। कोई न कोई हमारे अंदर की मुझे ऐसा अचीव होना चाहिए, आई नीड दिस, आई नीड दैट, सब हमारे चाहे ये इच्छा, आकांक्षा, नहीं, तृष्णा, डिज़ायर, वांटिंग, सब चीज़ है हमारे लाइफ में। परंतु आज हम आपसे ऐसे साक्षात्कार करेंगे कि भाई कर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, सीक्रेट ऑफ कर्म क्या है, इसकी फिलोसफी क्या है, सब जानते हो, कोई इनोसेंट नहीं हो। जानते हो ना सभी? कौन कौन जानते हो? हाथ खड़ा करो। बच्चे लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, क्यों? देखो, क्योंकि सबको पता है कर्म तो, क्योंकि इस बॉडी के अंदर जो बीइंग आई है, बीइंग बॉडी के अंदर प्रवेश करते ही कर्म शुरू होता है। ठीक है ना? इसके बारे में जानते हो ना? कोई कर्म बड़ी बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है कर्म तो। परंतु हमें जब उसके बारे में मालूम नहीं होता तो हमें लगता पता नहीं कितना ये कठिन सब्जेक्ट है, कितना गुह्य सब्जेक्ट है, कितना डीप सब्जेक्ट है। नहीं, सब आम तौर से अपनी जीवन की यात्रा में कर्म कर रहे हो। बच्चे लोग, आप कर्म नहीं करते? करते। क्या कर्म करते हो? बोलो, थोड़ा क्यूरियोसिटी बताओ अपने अंदर के, क्या कर्म करते हो? हाँ जी, माय गॉड, देखो पढ़ते हैं। और क्या करते हो? थोड़ा तो बताओ, कुछ ना कुछ तो करते होंगे पढ़ाई के बगैर। और क्या करते हो? हाँ, खेलते भी हैं, चिट चैट भी करते हैं, बहुत चीज़ें करते हो, लिखते भी हो, पढ़ते भी हो, बहुत चीज़ करते हो। देखो, हम सबको मालूम है कि हम कर्म की यात्रा में इन्वॉल्व हैं, है ना? कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, परंतु हर कोई कर्म की यात्रा में निरंतर बढ़ रहा है। पर आप सभी बताओ कि आज तक अपने जीवन की कर्म की यात्रा, टिल नाउ व्हाटएवर इज योर जर्नी ऑफ कर्मा, आर यू कंप्लीटली सेटिस्फाइड फ्रॉम योर जर्नी ऑफ कर्मा? टेल मी, कौन संतुष्ट है, कौन संतुष्ट नहीं है, ये बताओ। हाथ खड़ा कर सकते हो, अपनी चीज इजहार करो कि भाई मुझे तो थोड़ा कर्म हर्ट कर रहा है, मुझे कर्म में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। नहीं, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल, आई एम रियलाइजिंग, आई एम एक्सपीरियंसिंग, आई एम फीलिंग, आई एम फुल ऑफ ऑल पॉजिटिविटी ऑफ कर्मा। कौन है? नहीं, मुझे तो एकदम डिप्रेस कर देता है, स्ट्रेस में चला जाता हूँ, टेंशन में चला जाता हूँ, हर्ट हो जाता हूँ, नींद खराब हो जाती है, ये होता है, बार बार मन अनकम्फर्टेबल फील होता है कि माई लाइफ इज़ ब्लिस्ड और माई लाइफ इज़ कर्स्ड। क्या है? व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन? हाँ बहन जी, कुछ बोलना चाहते, बोलो, आगे आ जाओ, फिर दूर से मैंने सुनाई नहीं देगा, आगे बैठो, थोड़ा आगे आओ, क्योंकि सुनाई नहीं देगा ना, क्योंकि आप ही हमें कोई आपके लिए कोई विशेष क्लास करने नहीं, हम तो शेयर करेंगे। टू ए कन्वर्सेशन है ना, ये संडे टॉक मैंने आप सबको रिफ्रेश होना है, ठीक है? कोई सफोकेशन फील कर, पता नहीं क्या बताएं, क्या मैं क्या बताऊं, ऐसे साइकोलॉजिकल इंप्रेशन ना, फील प्लेजर टू शेयर योर इनर आइडिया, इनर फीलिंग्स, इनर सब चीज़ करो तो फिर मज़ा आवे। नहीं तो क्या है, ये तो बिटर टेस्ट के तीता करेला, पीटर गार्ड समझते हो ना, वो खाते समय कैसा होता है फेस, अच्छा नहीं लगा, पर जब स्वादिष्ट का, अरे मज़ा आ गया, एक रोम रोम खुशी से नाचते हैं, खिलने लगते हैं। हाँ बताओ बहन जी, आप क्या बोलना चाहते हो, बताओ। I feel I am blessed in many ways because of my past life karmas, but I feel my life is cursed also because वो थोड़ा बैलेंस करके भगवान भेजते हैं ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा। So I feel I am cursed in many ways
but I also blessed, so I should feel gratitude also. बहन जी ने बहुत गहरी बात बताई। हो गया ना, पूरा हुआ? हाँ बोलना, बोलो बोलो। और the problem is कि the things for which I feel cursed because of people or because of the environment, तो वहाँ पे नेगेटिविटी आती है, राइट, कि हम उनके बारे में तो वहाँ पे वो जो विचारों के कर्मा होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनके बारे में, क्योंकि अंदर हर्ट है, गुस्सा है, तो अगर उनके बारे में कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो वो वीसीएस साइकिल बनेगा। बहुत बच्चा दोबारा से फिर से आएंगे, वो दोबारा से फिर से लाइफ में आएंगे, फिर हर्ट करेंगे, तो वो वीसीएस साइकिल कैसे तोड़े, मतलब। ठीक है, देखो कितनी गहरी बात बहन जी ने बताया। देखो, क्योंकि अपने अपने जीवन की अनुभूति हैं, जीवन के अनुभव है, नहीं तो उसमें क्या होता है कि आपके कंसेप्ट में अभी तक सोच थी, भगवान ने कुछ पॉजिटिव डाला है, कुछ नेगेटिव डाला है, ये बहन जी ने बताया। सुना, आप सब ने सुना? क्या भगवान ऐसा करता है? बताओ, कौन एग्री हो, कौन डिसएग्री हो, बोलो। भगवान बुरा भी अच्छा भी डाल के भेजता है? बताओ, कौन हाँ बोलते हो, कौन ना बोलते हो? वो थोड़ा हाथ खड़ा कर। ना वाले कौन हो, बोलो, हाथ खड़ा करो। हाँ वाले कोई ना कोई तो हो जाओ। आज भाई साहब अब कमाल है, देखो इन्होंने गजब किया। देखो एक भाई आपके मिले वोटर से को, आपको वोट 2 मिल गए ना। सुनो, देखो अब क्या है, देखो आप अपने घर में अपने माँ बच्चे माने बच्चों को जो जन्म दिया है, अगर आपके हाथ में कलम दिया जाए कि भाई आप अपने बच्चे का भाग्य लिखो, ठीक है, जिसको बहुत लाडला समझते हो, प्यारा समझते हो, क्या लवली है मेरा चाइल्ड, क्या मेरा एनर्जेटिक है, क्या माने इतना हैंडसम है, सब चीज़ आपने आप में रजिस्टर्ड किया है, आपने अपनी अंदर में बीइंग के अंदर संस्कारों में भरा हुआ है। तो ऐसे बच्चे के लिए अब आपको बोला जाए कि भाई आप इनका भाग्य लिखो, आप इनका चाहे फेट लिखो, डेस्टिनी लिखो, तो कैसा लिखेंगे भाई साहब? आप कैसा लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे? आपका बच्चा है कि नहीं? हाँ भाई साहब आप बताओ, बच्चे आप तो बहुत अनुभवी हो, आप बताएं कैसे बच्चे का भाग्य लिखने के। आप प्लीज़, अगर बच्चे का भाग्य लिखने के लिए आपको बोला जाए, जितने भी आपके बच्चे हो, आप कैसा भाग्य लिखेंगे भाई साहब? कितना कितना अच्छा, ये तो बताओ। हाँ, कमाल की बात है, आपने सुना, ये दिल की बातें हैं। देखो, आप ये समझे कि मेरा बच्चा सबसे हाई पोजीशन में जाए, हाई क्वालिटी वाला हो, हाई स्किलनेस हो, इसमें हाई परफॉर्मेंस हो। चाहे आपकी एम हो मेरा बच्चा आईएएस अफसर हो, मेरा बच्चा सीनियर साइंटिस्ट हो, ताकि वो साइंटिस्ट वहाँ तक चंद्रयान को भेजने वाला मेरा बच्चा साइंटिस्ट हो जावे, अथवा ऐसा डॉक्टर हो कि सबसे हाईएस्ट हाई माने डिग्री वाला, स्किलनेस वाला, सब एक्सपर्टीज वाला ऐसा। तो हर एक के मन में अपने बच्चों के बारे में कैसा विचार है कि मेरा बच्चा A1 बने, मेरे बच्चे की ऐसे के लिए मैं कामना करता हूँ। क्या मेरा बच्चा डाकू बने, चोर बने, क्या मेरा बच्चा फेलियर बने, क्या मेरा बच्चा ये बने वो बने? ये लिखते हो कोई? किसी का भी हाथ नहीं पड़ेगा। तो आपका बाप बहन जी जब सृष्टि का भगवान है, जब उसको करते हैं, कहते हैं कि दुख हरता सुख करता, संसार का कल्याण करना जानता है, बाकी अकल्याण उसके डायरी में, डिक्शनरी में नहीं है। तो उस पिता ने जब हमें भेजा है, तो क्या हमारे अंदर नेगेटिविटी डाल के भेजा होगा? एक्सेप्ट करते हो? बोलो आप, फ्रैंकली यू जस्ट से। हाँ वैसे आप बोलो, आपने भी हाथ खड़ा किया तो इनको दीजिए, माइक दीजिए। नहीं वो है। हाँ जी बोलो भाई साहब, क्या है आपके विचार में, क्या लगता है? नमस्ते। हाँ जी, कंफर्टेबल है, हिंदी कंफर्टेबल है ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी को इंग्लिश जरूरी है तो बोल देना मेरे को, नहीं? ओके जी, इस दुनिया में छोटे छोटे जानवर भी हैं, हाँ जी, वो शेर भी हैं, हाँ जी, which is eating this small animal. हाँ जी। So God has created us both. And when it comes to the human beings, ordinary people are there and the strong people are there who are using the ordinary people.
who are exerting their force on the ordinary people. Mhm. Maybe God didn't think about that, but unfortunately this is what happening. So that's why I said ठीक है भाई the nature has got both good and bad. गुड गुड. अब बैठिए बैठिए. देखो क्या है. देखो हम मनुष्यों के पास मास्टर माइंड है. ठीक है. सारा संसार में कौन रूल कर रहा है भाई बहनों बताओ. हु इज रूलिंग ऑन दिस होल अर्थ प्लैनेट में कौन रूल कर रहा है. लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ और ये सब शासन कर रहे हैं क्या. नहीं, ह्यूमन कर रहा है ना. ह्यूमन क्योंकि मास्टर माइंड है. जितने बड़े बड़े स्थावर जानवर हैं फिर उसको ट्रेनिंग देने वाला ह्यूमन ही चाहिए वहाँ. क्यों. क्योंकि हम मास्टर माइंड है. अब आज मनुष्य ही क्या कर रहा है बताओ. क्या क्या चीज़ें खाता है, क्या नहीं खा रहा है. क्या हमारा मनुष्य का वो फूड है. क्या हमारा है. कौन एक्सेप्ट करे वो फूड है बोले हाथ खड़ा करो. क्योंकि मांसाहारी और शाकाहारी इनमें फ़र्क है. देखो आप तुरंत एनालाइज करो हर एक चीज़ का नॉलेज को. हमारे फ्लैट टीथ हैं जो खाने वाले नंगरे दाढ़े होते हैं उनके. ठीक है. और हम लिक्विड को पीते हैं. नॉन वेजिटेरियन खाने वाला पी नहीं सकता, चाटेगा. ठीक है. हमारे इंटेस्टाइन 206 इंच लंबे हैं इंटेस्टाइन जो है, और उसका डायमीटर बहुत स्मॉल है. तो ऊपर से नीचे के पेट में जाने को करीब 5-6 घंटा लगता है फूड. और जो नॉन वेज खाने वाला है उनका क्या होता है, डायमीटर बड़ा है इंटेस्टाइन का और लेंथ स्मॉल है. क्यों. उनका ऊपर से तुरंत ही नीचे जाना पड़ता है, नहीं तो सड़ जाता है वो. तो इसलिए देखो आज हमने सब कुछ कर लिया, जबकि हमारे सिलेबा में टेस्टलेस सिलेबा है. और नॉन वेजिटेरियन खाने वाले जो उनका सिलेबा साल्ट टेस्ट होता है. अब देख लेना, मैं आपके आगे कोई गप्पी बातें नहीं बता रहा हूँ. तो इसलिए ये देखो कंपेरेटिवली देखो, वी आर डिजाइंड फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड के लिए है. और काऊ कैसे पानी पीता, बोलो काऊ कैसे पानी पीता है बताओ. किसने देखा है काऊ को. हाँ सिस्टर बोलो. पीता है ना. यस यस, शी इज और ही इज ड्रिंकिंग. बट टाइगर हाउ ही टेक्स लिक्विड like this. No chances to drink. You drink or you lick liquid? My God, you are giving your certificate of vegetarian हम. पर how many person in the world are following this pure vegetarian life? बहुत ही कम है. ज़्यादा नॉन वेज वाले हैं, है ना. तो आज मनुष्य जो मास्टर माइंड है वो जानवर के भी नीचे गिरे हुए काम, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को ले हुए खा रहे हैं, वो सब खा रहे हैं, ये सब हर चीज़ खाया कर रहा है. तो देखो कर्म फिलोसफी से हम गिरे हैं. और फिर बताओ आज सबसे डेंजरस एनिमल कौन है इस संसार में, बोलो. हाँ. माय गॉड, आपको थोड़ा लाज नहीं आती, अपने आप को ऐसा बोल रहे हो. समझे ना. क्योंकि एनिमल के पूरा टाइटल जो भी है, उनकी सब क्वालिटी, सब चीज़ है, नेचर सब है, वो ह्यूमन ने अपने आप में डाउनलोड कर लिया. समझे ना. इसी के कारण संसार बहुत भयावह स्थिति में है. मार धार, लड़ाई झगड़े और नहीं कि चीज़, भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, अत्याचार, पापाचार की बहुत सारी मार्केट हाई है ना. तो ये क्या हुआ. ये गॉड ने भेजा था ना, हमको भेजा था. गॉड ने डाला था भाई साहब, सॉफ्टवेयर डाला था, तुम जाओ करके नॉन वेजिटेरियन खाना बल्कि ह्यूमन को नहीं. पर हाँ वो जानवर खाएंगे, उनमें तो विवेक नहीं है, हमारे में तो विवेक है. एनिमल में हमारे में यही तो फर्क है ना, हम विवेकशील प्राणी हैं, उनके पास विवेक नहीं है. और हमारे में लोअर ब्रेन और अपर ब्रेन फंक्शनेट होते हैं, और एनिमल केवल लोअर ब्रेन मात्र एक्टिवेट होता है. शायद मैं आउट ऑफ टॉपिक तो नहीं गया हूँ ना, बोल देना मुझे, संभालना नहीं, क्योंकि वही चीज़ें मैं आपको क्लियर. तो इसलिए देखो कि जब हमारी लाइफ स्टाइल, जब हमारे मोरल वैल्यूज़, जब हमारे इथिकल वैल्यूज़ सब चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं,
तब फिर हमारे और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। इसीलिए हम कंपेयर कर रहे हैं, उनको ऐसा खाना, उनको अरे हर एक अपने अपनी नेचर का खाता है। अब माँ की बॉडी में वाइट लिक्विड है, रेड लिक्विड है, कौन सा लिक्विड खाने को अथॉरिटी है बच्चे को? बोलिए भाई साहब। वाइट लिक्विड, रेड लिक्विड। जब बच्चा जन्मते ही रेड लिक्विड खाएगा तो माँ मर जाएगी, हिंसा हो जाएगी। वाइट खा रहा है तो उसके लिए दिया है, गॉड ने डाला है, उसका ये नेचर है। तो हर चीज़ के लिए है, परंतु रिस्पॉन्सिबल कौन है इस संसार को खतरनाक हेल बनाने और हेवन बनाने का? रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे हाथ में स्टीयरिंग है ना। पीछे बैठे हुए तो या एक्सीडेंट करेगा, ये मर जाएंगे, सेव करेगा तो वो कंफर्टेबल होंगे। इसीलिए कर्म फिलोसफी आपको यही चीज़ बताती है। कर्म फिलोसफी का चश्मा आपको पहना होगा ना, आपको लगे नहीं भगवान ने तो हमें ऐसा भेजा था, भगवान ने नेगेटिविटी देकर नहीं भेजा है। पर मेरी कहाँ भूल है, मैं कहाँ इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे नेगेटिव टेंडेंसी से इम्प्रेस हो गया हूँ, तब मुझे हर एक की उसकी बात हर्ट लगती है। पहले तो इसका नाम उसका नाम सबका नाम हमारे पास होता है। इसके कारण हो रहा है, ये बहू के कारण हो रहा है, ये सासू ऐसी है, ये मेरा बॉस ऐसे रफ एंड वल्गरली बिहेव करता है, ये देते हो ना, सबको एक दूसरे को गिल्टी लगाते हो, पर अपने तरफ से देखते नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ देखते नहीं। सबको ये रहता है वो हॉर्ड। तो अभी देखो, दूसरे की पर्सनालिटी, दूसरे की एक्टिविटी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे जो भी कंट्रोल से बाहर है ना। जो समझते हो दूसरे की मेरे हाथ में है, नहीं है। वो तो अपने आप वो जो भी कर रहा है, वो तो कौवा अपनी भाषा बोलेगा, कोकिल अपनी भाषा बोलेगा। क्या कोकिल कौवे को चेंज कर सकता है? क्या कौवा कोकिल को चेंज कर सकता है? नहीं। तो इसलिए अपने अपने नेचर से जो भी एक्टिविटी यहाँ कर रहे हैं, तो उनका कारण क्या है? जैसे हम समझते हैं, आप किसी राजा के राजकुमार होकर के जन्म ले लिए और उसमें भी आप क्राउन प्रिंस हुए। क्राउन प्रिंस को समझते हैं ना, जो उनका भावी राजा बनने वाला है कंट्री का। वो बच्चा जन्मता है तो उसने अभी कुछ किया है? यहाँ किया है? बोलो, नहीं किया है ना। By birth he is getting that highest on high, royal, every highest high glorified life. So that's why उसको वैसे सम्मान मिलता है। 21 जो है ना, उसको तोप की सलामी दी जा रही है। 58 बैंड के बहुत बड़े धुन बजते हैं, मंगल धुन बजते हैं उसके लिए। गोल्डन स्पून उसके मुख में रखते हैं, उसको भोजन खिलाते हैं। इसमें क्राउन रखते हैं। जब छोटा इनोसेंट, ही डोंट नो व्हाट इज द वर्ल्ड, व्हाट इज एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में, ही इज इनोसेंट, बट ही इज गेटिंग दैट ऑल प्रारब्ध एंड जब सब अचीवमेंट उसको ऑटोमेटिकली मिल रही है। वो हाईएस्ट एंड हाई एकदम इस प्रकार का ऑनर्ड रिगार्ड रिस्पेक्ट सब पा रहा है। ये क्या है बताओ, ये क्या है? हाँ जी, हाँ देखो कितनी ज्ञानी होगी। अभी बहन जी विद्या की देवी सरस्वती हो जा रहे, देखो। इसीलिए जैसे हर बादल के ऊपर गोल्डन सिल्वर लाइन होती है, तो हम भी कोई देखो अपने आप को हीन भावना नहीं, हमें कुछ भी नहीं, सब कुछ है। किसकी सिलेक्शन है? हम बोलो, किसकी सिलेक्शन है हम? हाँ, ताली बजा लो बस, ये सुनो, ये चीज़ सदा ध्यान में रखो। आप किसकी सिलेक्शन? इंडिविजुअल एक अपने माइंड में रखो। हम तो गॉड की सिलेक्शन है। इस धरती में हम अपना खेल मंचन करने के लिए आए, हीरो हीरोइन हो। क्या समझते हो अपने आप को? कोई हीरोइन समझते हो? नहीं मैं तो एकदम हाउस वाइफ हूँ, नहीं मैं तो फलाना, मैं चपड़ासी हूँ, नहीं मैं तो नहीं। अरे बोला सबका देखो। आपको एक बताओ, ये भाई जी का रोल है जो आज संसार में 800 करोड़ पॉपुलेशन है, आपका रोल कोई अदा कर सकता है? बोलो। यू आर यूनिक फॉर द होल वर्ल्ड। You are yourself is everything. All qualities, talent, whatever sanskaras, everything is downloaded inside your soul. You are unique among 800 crores. So why you demoralize? Why you less में क्यों अपने आप को हीन भावना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में, कोई सुपरमेसिव कॉम्प्लेक्स होकर और को मार धाड़ कर रहा है? ये दो रोगों से हम पीड़ित नहीं होने चाहिए।
आपको शेफर लैंडिंग में रहना है। क्या है शेफर लैंडिंग, क्या है बताओ? इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हायर सुपरमेसी कॉम्प्लेक्स? कौन सा है शेफर रास्ता बोलो? हाँ जी, मिडिल क्या है, बैलेंस क्या है? समझो, आपके आगे कोई पार्कर पेन से लिख रहा है, ओह माय गॉड, हजारों हजार की कीमत पेन से वो लिख रहा है, ठीक है, उसका उद्देश्य से आपको प्रभावित कर रहा है, और आपका पेन है 20 रुपये का। हाय हाय, वो 10,000 का पेन से लिख रहा है, मेरे तो कुछ भी नहीं है। पार्कर पेन से लिख रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो बेचारा बड़ा इन्फिनिटी में आ जाएगा, और वो सुपरमेसी में आ रहा है कि मेरी जैसी पेन किसी की है यहाँ। अब बताओ उसकी नज़र कहाँ है? हायर मैंने समझा सुपरमेसी कॉन्फ्रेंस में है, मैंने कॉन्शस में है, अब आपके लोअर कॉन्शस में आगे बहुत हीन भावना इन्फिनिटी में आ गए। तो शेफर लैंडिंग क्या है? अगर वही पेन जो आपके पास 20 रुपये का पेन है, अगर नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रपति ने दे दिया आपको गिफ्ट, फिर आपकी सोच कैसे रहेगी? बोलो, थोड़ा बोलो सही, मुस्कुरा करके बोलो, हंस करके बोलो, खिलखिला करके बोलो, कैसे रहेगी? आप चार्ली ये बोलो। If you are getting that gift as from President Prime Minister of this country among 140 people के बीच से सबसे A1 जो है इस कंट्री का, उस हाईएस्ट अथॉरिटी ने उसने दे करके आपको गिफ्ट दे दिया। वो तो प्राइम मिनिस्टर को देता होगा, प्रेसिडेंट को देता हो, चीफ मिनिस्टर को देता हो, अथवा कोई गवर्नर को देता हो, पर आपको लकीली मिल गई। अब आपकी सोच कैसी होगी? 20 रुपये कोई वैल्यू नहीं करता, परंतु वैल्यू वो करता है कि माय गॉड, मैंने उनसे इतने माने हाईएस्ट अथॉरिटी से मिली है। तो जब इस लाइफ को आप गॉड गिफ्टेड है और मैं यूनिक हूँ होल वर्ल्ड में, जब ये सोच रहेगी तो ना आप हीन भावना से प्रेरित होंगे, ना सुपरमेसी कॉम्प्लेक्स से प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए देखो, संसार में जियो, पर कैसे जियो? हंस हंस करके जियो, और रो कर जीने के लिए दी है क्या ये लाइफ बताओ? पर बहुत मैक्सिमम रो करके, तड़प करके, रात की नींद नहीं आई है, खाने का मन नहीं है, बात करने का मन नहीं, ये वो है करके ऐसे अपने आप को एक पीड़ित रखते हैं। क्योंकि ऐसे अपने आप को जेल के कैदी बंदी नहीं बनाओ। यही चीज़ आपको ये दी जा रही है कि भाई आप लाइफ के लिए जो कर्म फिलोसफी को समझो, और किस आधार से इस लाइफ की यात्रा को हम मूव करना है, जो कि कर्म फिलोसफी को समझ करके मूव करो, फिर आपको लागे। कैसे हो भाई साहब? बात मत पूछो, मज़ा आ रहा है साहब। अच्छा, तो तब वही बोलते हैं, आग लगे भले बस्ती में, हम तो रह गए मस्ती में। बोलो, कोई नहीं बोल रहे, बोलो तो सही, बोलो। भले आग लगी हुई बस्ती में आप कैसे रहोगे? सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, बोलो, एक बार रिपीट करो। आग लगना तो नहीं है, देखो, आग तो लगाना नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो, कि मेरा कहने का मकसद ये है कि भले जितना भी टफ सिचुएशन हो, देखो, एक व्यक्ति ने पी लिया तो राजा अपने हाथी में जा रहा था, शाम को घूमने के लिए ऐसे जा रहा था। वो पिया हुआ आदमी जिसने वाइन पी है, शराब पी है, ए राजा तेरा हाथी खरीदता हूँ बोल रहा है। बाबा, राजा को बहुत वो लगा, बाबा मेरा हाथी खरीदेगा तो? हाँ लाओ, कितना बोल रहा है। राजा ने समझा ये माहौल अब मेरे को बोलने का यहाँ नहीं है करके चला गया। ठीक है, चला गया, दरबार में गया। दूसरे दिन सिक्योरिटी पर्सनल को बोला कि भाई वो व्यक्ति को थोड़ा लाओ। तो आपने, राजा ने बुलाया, चलो बोले, वो आया। आपने बोला ना कल शाम को मेरा हाथी खरीदूंगा। नहीं सरकार, मैं कहाँ, वो पिया था, उसने बोला है। समझे ना? तो इसीलिए देखो, हमें भी बहुत प्रकार के नशे इस संसार में चढ़ गए हैं, उसके कारण हम अपने ओरिजिनलिटी को भूल जा रहे हैं। जो हमारे ओरिजिनल कर्म करने थे उसको भूल करके बहुत नेगेटिविटी से, इसकी बात से, उसके बात से कलर होकर के उसको दोषारोपण लगा रहे हैं। परंतु ये तो समझो, कर्म ऐसी चीज़ है, हमें कर्म ही राज सिंहासन दिलाती है। कर्म ही हमें कहाँ पहुँचाती है? फांसी के तख्ते पर पहुँचाती है। पहुँचाता है ना?
देखो, जब कर्म का फल अपने आगे आता, बाबा मैंने ऐसा कर्म था तो मैं तो फांसी के तख्ते पर लटक रहा हूँ अभी, तब रियलाइज होना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हो गया। आपके पास, आपके हाथ में क्या है? क्या है बताइए? जो आपने कर्म कर लिया वो आपके हाथ में है तो बोलो, कोई हाथ खड़ा करो, मेरे हाथ में बोलो। गया वो तो आपके हाथ से निकल गया, समझो ना, निकल गया वो। अब आपके हाथ में क्या है? क्योंकि देखो, जो कर्म आप करेंगे वो किस रूप में आपके आगे आता है? मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य और नियति। अब इसको तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों आया? थोड़ा थोड़ा होगा तो उसको 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 सबको दोषारोपण लगाने, ज़्यादा ही होगा तो हे भगवान तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ऐसा मेरे को ही देता है, सारा संसार औरों को नहीं देता करके फिर उसको भी गाली देना शुरू कर लेते हैं। ये बातें होती है समाज में, हम सब सुनते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक जगह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे कनेक्शन में था, आता था सेंटर पर, उस मैसेज भी आती थी सभी। अनायास ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने शरीर छोड़ दिया तो हमको लगा नहीं नहीं बाबा का बच्चा है सब, अब उनको इतने दिन कनेक्शन, उनके लिए कुछ चाहे सांत्वना देने के लिए जाना होगा, श्रद्धांजलि देने के लिए जाना होगा करके वहाँ गए। जाते ही उनकी मिसेज ने बोला, प्राइम मिनिस्टर की मिसेज ने, यही भगवान ने ये किया, डिसीजन किया, मेरे पति को ले गया, यही है उसका ये हमारे प्रति न्याय निर्णय। बोला, बहुत बौखला करके बोल रहे हैं। हम सबको लगा कि अच्छा चलो, हम बिल्कुल साइलेंस रह गए। उस टाइम में कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही उस दुख से, पीड़ा से तड़फित अवस्था में हैं। तो हमने क्या किया, बस वहाँ 15-20 मिनट हम सब जो भी जितने गए थे सेंटर से भाई बहन, उन्होंने उसके लिए मेडिटेशन किया कि इनकी आत्मा को भी थोड़ा धैर्य मिल जाए और जो पास्ट डिपार्टेड सोल है उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाए करके ये सब किया। करने के बाद फिर बोला, देखो आप भी थोड़ा याद करो, अभी ठीक है आपको अनटोलेबल सिचुएशन आया है आपके सामने, पर हम आपके लिए दुआ करेंगे और हम अमृत वेला अर्ली मॉर्निंग जो मेडिटेशन करते हैं आपके लिए प्रे करेंगे। तो ऐसा बोल के आ गए। तो फिर कुछ समय के बाद उन्होंने तुरंत बोला, दीदी भाइयों आप सब आए थे, आपका बहुत अनादर किया मैंने, मुझे रियलाइज़ हुआ कि तो जिसका भी कर्म का हिसाब आता है तो हमको स्वीकार करना पड़ता है। जिस दिन किसी का बर्थडे होता है उस दिन क्या निश्चित है बताओ? डेथ भी निश्चित है, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों डेथ नहीं होना, जन्म ही रहना। कोई है आज तक रहा हुआ यहाँ? सब जाते हैं, परंतु उसको हम एक्सेप्ट नहीं। क्यों? कि हमारी जो मोह है, आसक्ति से लगाव है, झुकाव है उसके प्रति, उसको हम सेपरेट करना ही नहीं चाहते हैं। यही है ना, यही होती है ना। तो इसलिए क्या है कि हमें कर्म ये सिखा रहा है, जैसा आप चाहते हो वो क्या करना है, बोलो। जो चाहते हो और उनसे एक्सपेक्ट करते हो जो, क्योंकि आपको हर्ट कर रहा है, दुखी कर रहा है बार बार। देखो एक बात है, आपने कुछ गलती की है, भूल की है, कोई आपके ऊपर कमेंट कर रहा है तो उसमें तुरंत रियलाइज करो। ओहो, समझो आप 10 बजे जा रहे हो ऑफिस में, 8 बजे तक ऑथेंटिक आपका टाइम है पहुंचने का, 10 बजे जा रहे हो, उसने बोल दिया कि ये तो बहुत ही लेट आता है, हर रोज़ 10 बजे आता है, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसके लिए कैसा क्रिएट करेंगे अंदर थॉट्स, कैसे क्रिएट करेंगे? मैं थोड़ी हूँ, वो भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, मैं आ रहा थोड़ी लेट में। ये क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको राइट बोल रहे हो, ठीक है। अगर ओहो अब मेरी बात मैनेजमेंट तक चले जाएगी, कल निकाल भी सकते, इसलिए ही इज़ माई बेस्ट टीचर, ही इज़ माई बेस्ट टीचर। ये एक्सेप्ट करते हो? कोई जो करते हो हाथ खड़ा करो। शाबाश। देखो प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा, देखो प्रोफेसर साहब थोड़ा खड़ा होकर दिखाओ सबको चेहरा, देखो बहुत बड़े प्रोफेसर साहब हैं वो, देखो पढ़ाई में इतने वो है, पर उन्होंने जो भी किया कि ये जो है ना
पॉजिटिव सॉफ्टवेयर को यूज़ किया। ये है कि जो भी आया है परे उधर से, परंतु अब मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, समझे ना। तो इसलिए क्या है कि जो भी चीज़ आता है आपके सामने, अब उस समय आप एक्सेप्ट नहीं करते हो क्योंकि आप रिएक्टेड हो रहे, परंतु जो उसने कमेंट आपके ऊपर की उसको अंदर से बोलो ये मेरा बेस्ट टीचर है, ये मुझे कोई भी कमज़ोरी होता हुआ देखना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहती है, भले मेल हो, ही हो और सी हो। तो अगर इस चीज़ को आप समझेंगे, ये डाउनलोड कर देंगे ये फीलिंग अपने अंदर, तब आपकी उसके प्रति बैर की भावना, विरोध की भावना, घृणा की भावना, अपमान की भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना ऐसी आएगी नहीं। तो ये ठीक है कि बैड है, ये खराब है कि कौन सा ठीक है आपके विचार में, बोलो। ये ठीक है ना। सब इसमें सभी अपना चाहे एग्री करोगे, हाथ खड़ा करो। आना है कल आपको और आएगा। आज सूरज सिंह भाई क्लास कर रहे हैं, कल आपके ऊपर बहुत चीज़ें आएंगी। वो चीज़ साफ नहीं होने वाली, वो तो आती हैं क्योंकि हम कहाँ पर हैं, हम कलयुग में हैं। कलयुग आप जाकर किसी कौवे के समाज में बैठ गए तो क्वां क्वां करेंगे, आप शांति तो अशांति कर देंगे। पर आप कोकिल की समाज में बैठेंगे तो ओहो कितना आनंद आ रहा है, क्या सुंदर बता। 3 व्यक्ति थे, सुनो। एक था साधु, दूसरा था ऑर्डिनरी व्यक्ति, तीसरा म्यूजिशियन था। रात में भटकते भटकते जा कर के बहुत देर हो गई, चलो हम इसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सो गए। समझ में आ रहा है ना, किसी को कठिन तो नहीं है ना, बताओ ना, ये फील करो, विजुलाइज करो वो चीज़ को। तब उसमें क्या है, कुछ समय के बाद रात में एकदम तूफान आकर के सब पत्ते सब हिलने लगे, उसके ब्रांचेस सब हिलने लगे, आवाज़ नॉइज आने लगे। वो ऑर्डिनरी व्यक्ति समझा है, उसकी नींद खुल गई। क्या घर में लड़ाई झगड़ा होता है करके जंगल में जाऊं शांति पाऊं करके आया था, अब ये देखो इतना अशांति की, मेरी नींद खुट गई, झट यहाँ नहीं ठहरता हूँ करके चला गया। क्योंकि एडजस्ट नहीं हो सका उसके साथ, उस सिचुएशन जो आपके आ रहे उसके सामने आ रहे। उसके बाद लकीली साधु बाबा भी उठे, उनकी भी नींद, क्योंकि बहुत तूफान चल रहे थे, एकदम बड़ी बड़ी आवाज़ आ रही थी, तो करते करते उसके सारे पत्ते भी गिर 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 के नीचे हो रहे थे, पत्ते सब झड़ रहे थे। यही जीवन है, सब मर के चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, क्या है यहाँ तो मुझे अच्छा ही चैन नहीं मिला, चलो निकल जाता हूँ। वो भी निकल गया। देखो, 2 उस सिचुएशन से अपने आप को कोप नहीं, एडजस्ट नहीं कर सक रहे, चले गए। तीसरा था म्यूजिशियन, अब उसकी बारी आई, 2 तो चले गए, अकेला ही रहा, सोया हुआ है। जब ये धुन सब सुनता है, उठा, वाह मैंने अपने लाइफ में ऐसी धुन म्यूजिक की कभी नहीं बनाई, कमाल है तू पेड़, तेरे को बार बार धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने हृदय से ऐसा म्यूजिक मैं बना सकता तो कितना मज़ा आता करके नाच रहा है वो उसी म्यूजिक के साथ, मस्ती से सोया रहा, उसने मौज लूटी उसकी। तो कौन है बुद्धिमान? आप होंगे ऐसे म्यूजिशियन जैसे काम करोगे? बोलो एग्री हो, हाथ खड़ा करो, करोगे? वेरी गुड, आप तो बहुत गुणवान हो, भाग्यवान हो। देखो मैं तो आपसे खुश हो गया, आज तो मुझे ज़्यादा थोड़ा भोजन और खा लूँगा। नहीं नहीं वो बात अलग है भाई साहब, वो बात तो ठीक, देखो इनका फिर और चल रहा है, वो बात तक मैं आपको नहीं ले गया हूँ, वो बात तो अलग चीज़ है। अभी वहाँ तक तो पहुँची नहीं है आंधी तूफान, यहीं तक हुई है। अब यहाँ जाओगे तो फिर ये नाव में बैठे, मेरी नाव डूब गई तो फिर तो गया काम से, आपका तो होश ही निकल जाएगा। तो इसलिए ऐसी बातें होती हैं। देखो आप सुनो वो बात ठीक, परंतु आप वो फिर उधर लौटा रहे हो, उसको उधर घुमा रहे हो। एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक नेगेटिव साइकिल, दोनों का नेवर एंडिंग है। परंतु हम किस चीज़ को कैश करते हैं, वर्तमान में किस चीज़ का मौज लूट रहे हैं, क्या चीज़ हमारे लिए फलदायक है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या रिजेक्टेबल है, वो चीज़ हमें देखना होता है। देखो कैसा होता है, हर एक चीज़ की अपनी अपनी परसेप्शन होती है। अब उसी एक नाव में 3 लोग बैठे हैं, एक साइंटिस्ट बैठा है, दूसरा पॉलिटिशियन बैठा है, तीसरा सोशल वर्कर बैठा है, बहुत हाई पर्सनालिटी बैठे हैं नाव में। यहाँ एक 8 वर्ष का बच्चा बैठा है, छोटा सा। जब नाव चल रही है तो उसमें नदी में अब आ गई, तूफान का समय वहाँ भी आया,
आ गए तो दोनों मर गए करके दोनों तीनों चिल्ला रहे, पॉलिटिशियन भी, साइंटिस्ट भी, तीसरा व्यक्ति सोशल वेलफेयर वाला वो भी, सोशल वर्कर भी। वो बच्चा हंस रहा है करके हंस रहा, तेरा दिमाग आउट हो गया, तो क्यों हंस रहा है? हमारे यहाँ हाल मुर्गी की जान जा रही है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। नहीं तो ऐसा, हाँ मैं हंसता हूँ, क्यों हंस रहा है? तेरा क्या है सीक्रेट ऑफ योर माने चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस, ये लाफिंग का मतलब क्या है? देखो एक सीक्रेट बात बताता हूँ। क्या बताओ? बोल। उनको क्यूरियोसिटी बढ़ी। ये जो नाव चला रहा है ना, ये मेरा बाप है। अच्छा हाँ मेरा बाप है। ऐसे तो तूफान कई बार आए थे, कई बार मैं डूबा हूँ। वो यात्री इतना अच्छा नाविक है, इसमें रख कर के सब पार तरा देता है सब। मैं तो कई बार वहाँ पर हूँ, मैं कितना क्या, ऐसा मेरा बाप है, एक्सपर्ट है, इसलिए विश्वास करो मेरे बाप पर। हाय थोड़ा डाउन हुआ जो क्लाइमेक्स में आए थे। बात तो सही बोलता है। तो मैं कितने बहुत सालों से मैं इसमें पापा के साथ ही रहता हूँ, मैं घर में थोड़ी, मैं तो यहाँ ही रहता हूँ, पर कई बार उल्टने वो हो गई है। पानी में डूबते समय ऐसे ले आता है, इधर बैठा कर मेरे को पार उतार देता है। ये तो मेरा पिता जैसे हनुमान है, ये कुछ नहीं, उसका तो खेला हुआ खेल है। तो देखो ऐसे कुछ चीज़ पर, पॉजिटिविटी पर विश्वास पैदा करो, नेगेटिविटी से बोलो अच्छा 36 63 में क्या फ़र्क है? कौन बोलेगा? बोलो 36 एंड 63 में व्हाट इज डिफरेंट देयर? कैन यू टेल मी एनीबॉडी प्लीज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपका शुभ नाम भाई साहब, थोड़ा खड़ा हो गए बताओ, थोड़ा इनको अच्छे से बोल दो, क्या है 36 में? क्या है इन 36 digit? What you are saying there? What is there? नहीं वो बात में नहीं जाओ। 3 और 6 का अपोजिट है, ठीक है ना? 36 का देखते हो, 3 and 6 आर अपोजिट, राइट? एंड 63 का क्या है? 63 में क्या है भाई साहब? बोलो, आप बोलो, बताओ भाई साहब, आप बोलो। यस तो किसके साथ फेस रखना है? किसके साथ 36 अपोजिट डायरेक्शन में जाना है? बोलो। नेगेटिविटी के साथ 36, नेगेटिविटी के साथ 36, पॉजिटिविटी के साथ, बाप रे, ताली बजा सकते हो सभी। अडॉप्ट करोगे इस फॉर्मूला को? कोई कठिन चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, कोई मंत्र महा कैसे श्वास रोकना, ये करना, कुछ बात ही नहीं है। देखो उसी को कहते आग लगे बस्ती में, हम तो रहेंगे मस्ती में। कौन सा फ्लावर देखो, सनफ्लावर का कैसा जीवन है बताओ? जब सूर्य आता है सनफ्लावर ब्लूमिंग कंडीशन में है, जब सूर्यास्त होता है कुमला जाता है बस। तो हमारा भी जीवन जो है भगवान की गिफ्टेड चीज़ है। इस गिफ्टेड चीज़ को आप उसको बेचारे को एकदम अच्छी चीज़ को, ओरिजिनल चीज़ को, रियल चीज़ को आप उसके अपोजिट हो जाते हो, फिर आपको बहुत परेशानियाँ आती है, वही जीवन आपको कर्स लाइफ लगता है। अगर उसके साथ पॉजिटिव के साथ फेस टू फेस हो जाओ, उसके लिए अपना डोर खोलो। और नेगेटिविटी मेरा डोर बंद है, मैं बिजी हूँ पॉजिटिविटी में। अब आप कोई विशेष मीटिंग में बैठे हो, कोई कितना भी व्यक्ति मिलने के लिए आया, क्या करोगे उस टाइम में? अभी बिजी हो आप, प्लीज़ करोगे ना पोस्टपोन कि आओ जी? आपके घर में कोई चोर ढकढका रहा बाहर, रोबर कोई आया, थीप से आया, आप जे वो आई बॉल से देख लिया कि ये तो डाकू है, खोल देंगे दरवाज़ा? खोल देंगे तो क्या होगा बोलो? वो तो नहीं खोलते, पर यहाँ तो खोल देते हो। यहाँ तो इन कर लेता है, सारा वातावरण ही पोल्यूटेट कर देता है। तो कर्म फिलोसफी आपको ये बता रही कि चलो पास्ट का तो छोड़ो, उसकी डेस्टिनेशन, उसका तो मेरे पास आएगा, रिजल्ट आएगा ना। जो बीज आपने रोप दिया है तो उसका पौधा आपके सामने निकलेगा, वो आएगा। परंतु उसके लिए आप रिजल्ट का मेंटालिटी नहीं बनाओ, उसको एक्सेप्ट करो और उसको बोलो कि अब मैं अपने वर्तमान में अब ऐसे वैल्यू का मैं माने उसका सहायता लूँगा, मदद लूँगा, ताकि मैं वर्तमान को अच्छा कर देता हूँ।
उससे रिएक्टेड नहीं होऊंगा, उसके लिए अच्छे विल अथवा इच्छाएं सब उसके लिए पैदा करता हूँ। उससे क्या होगा? अगर प्रेजेंट को आप कैश कर रहे हैं तो क्या होगा? डेस्टिनी अच्छी होगी। फिर आपको क्या मिलेगा? मज़ा आ जाएगा ना, क्योंकि अंगूर रोप दिया आपने, अंगूर खाने को मिलेगा। और तो कांटा सा है, इधर चुबा इधर चुबा इधर चुबा बोल रहे हैं, पर आप तो वैसे नहीं होंगे। मुझे तो मज़ा आ रहा है, क्या अच्छा अंगूर है। जब खाएंगे उनको, वह है मैंने कांटा रोपा, मैंने भूल की है। अगर वो भी रियलाइज़ करेगा, वो भी अंगूर रोपने लगेगा। तो इसलिए परमात्मा पिता ने यही बताया हुआ कि देखो, आज तक आप सब ने जीवन के नेगेटिव जो है ना इम्प्रेशन को, नेगेटिव फीलिंग को, नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव वर्ड्स को, नेगेटिव डीड्स को, नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स को हक किया, इनवाइट किया, उसको चांस दिया, गेट खोल दिया। उसके कारण तो आपको स्वाभाविक बुरी चीज़ें मिलेंगी। देखो, हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। हम ही अपने जीवन के स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। पर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि भाई आप अपने बच्चे की कैसी स्क्रिप्ट लिखोगे, कैसा उसका भाग्य लिखोगे, कैसी उसकी तकदीर बनाओगे, तो आपके अंदर तुरंत करेक्शन हो गया कि ओह, मैं तो ये वन उसका भाग्य लिखूंगा। तो ऐसे अपने लिए भी सोचो, अब इसको मैंने क्यों तड़पाना है, क्यों किसी की, देखो कोई भी है और उन्हें जो कुछ भी बोला आपको, पहली बात तो एक उसको चाहे, अगर अपने मैंने गलती करके समझो 10 बजे जा रहा था, तो मैंने कल से देखो 8 बजे आना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने सुधार ला लिया अपने जीवन में, तो आराम से 8 बजे जा रहा। कुछ दिन के बाद फिर वो व्यक्ति आकर के बोल रहा है आप तो 10 बजे आ रहे हो। फिर क्या होती है आपकी हालत? जब आप 8 बजे आना शुरू कर दिया, वो फिर 10 बजे आ रहे हो करके आपका कंप्लेन क्रिटिसाइज कर रहा है, उस वक्त क्या होती है आपकी हालत? बोलो, फ्रेंकली बोल दो। हाँ, रिएक्टिव हो जाते हो, ठीक है, बताओ, फ्रस्ट्रेट हो जाते। फिर क्या किया आपने? फिर दरवाज़ा नेगेटिविटी का खोल दिया, फिर 36 में आ गए। हाँ, हंस सकते हो, बताओ, फ्रैंकली बोलो भाई साहब, अभी मेरे को खुश करने के लिए हंसना पड़ेगा, नहीं बोलोगे आप कैसा करते हो बताओ। नहीं करना पड़ेगा, नहीं, आप आज तक क्या करते हो बताओ। हाँ, हाँ जी, अच्छा, हाँ, और बताओ कोई, भाई साहब कोई तो बोलो, प्रोफेसर साहब आप बताओ। सॉरी सर, इतना भी नहीं करो बेचारे को, फिर आपके अंदर घृणा पैदा हो जाएगा। ये फिर, हाँ, मेन बात क्या है कि देखो, जैसे उसने ऐसा एक्सप्रेशन किया, तो उस टाइम में समझो आप, वो अपनी सारी नेगेटिविटी मेरे मन को डस्टबिन बनाना चाहता है, वहाँ डालना चाह रहा है। मैं आओ डालो बोल दूंगा, 36 होकर के वहाँ से अपना अटेंशन बस हटा लूँगा। ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्टेबल है, इसको मैं इन नहीं करूँगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो उसमें क्या है, आप सेफ एंड साउंड रहेंगे। तो आपका सेफ्टी जैकेट कौन सा है? आपका सेफ्टी जैकेट कौन सा है इन चीज़ों से बचने के लिए? शाबाश, एक तो ये बताया भाई साहब ने। देखो, एक चीज़ ये भी क्लियर कर देता हूँ, देखो, साइलेंस का ऐसी चीज़ है, एक तो कीप क्वाइट, ये साइलेंस है। दूसरी साइलेंस है पिंड ऑफ साइलेंस। समझते हैं पिंड ऑफ साइलेंस क्या है? हाँ जी, ठीक बोल रहे मंजिल, थोड़ा मैं आपको उसको और स्पष्ट कर। पिंड ऑफ साइलेंस, जैसे आलपिन गिरता है, वो भी आपको फील हो रहा है, सुनाई दिया, वो है पिंड ऑफ साइलेंस। क्या पिंड ऑफ साइलेंस है बोलते हैं ना? थर्ड साइलेंस, डेड साइलेंस। कौन सी साइलेंस है डेड साइलेंस? मर गया, हाय हाय मर गया, फिर अच्छी फीलिंग तो आती नहीं ना। जैसे टेबल है, ये जिंदा भी नहीं होता, ये मरता भी नहीं, ये तो यहीं अपना साइलेंट है, वो डेड साइलेंस। फोर्थ साइलेंस कौन सी है? हाँ, देखो, ताली बजाओ ये भाई जी को।
यहाँ की साइलेंस ही स्वीट साइलेंस है, स्वीट साइलेंस, पॉजिटिविटी की साइलेंस, कंफर्टेबिलिटी की साइलेंस, प्रॉस्पेरस साइलेंस है, हैप्पी साइलेंस है, लवफुल साइलेंस है, ब्लिसफुल साइलेंस है, प्योर फीलिंग ऑफ साइलेंस है। उसमें आपका माइंड बिल्कुल काम हो जाता है। ऐसी साइलेंस से हार्ट बीटिंग स्लो, रेस्पिरेशन स्लो, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक, आपके ग्लैंड्स जो 20 स्रावित होते हैं नेगेटिविटी टाइम में, उस टाइम में अमृत साइकिल माने सेक्रेशन होता है। तो इस प्रकार देखो, ये कर्म फिलोसफी हमको ये ट्रेनिंग दे रही है कि कर्म की यात्रा में जाते समय इन पॉजिटिविटी को आधार बना करके आप मूव करेंगे तो आपका वर्तमान जो अच्छा बनता जा रहा है वो आपका क्या करेगा, वर्तमान को आपने कैश कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, गोल्डन हिस्ट्री बन जाएगी, बनेगी ना। वर्तमान को कैश कर दिया तो गोल्डन, अरे ये बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति था, इसने तो ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया करके, क्योंकि उसकी डेस्टिनी अच्छी हो गई, मतलब उसका भाग्य अच्छा हो गया। तो भाग्य से मौज लूटेगा तो अभागी तो मौज नहीं लूट सकेगा। तो देखो वो होता है। और फिर वो चीज़ के लिए अब हम जो भविष्य के लिए भी हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। इसलिए साइलेंस इज क्या कहा जाता है, बोलो, हाँ, साइलेंस इज गोल्ड, टू क्राई इज आयरन। हम किसी चीज़ का अगर नेगेटिविटी का हम नेगेटिवली रिस्पॉन्स करते हैं, उस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, आग के ऊपर पेट्रोल डाल रहे हैं। आग को निभाने का आपका एम है, इंटेंशन ये है कि आग को निभ जाए, पर पेट्रोल डाल रहे हो, निभेगा नहीं, निभेगा ना। उसके लिए तो आपको जल डालना हो, पानी डालना हो, जिससे वो क्लोज हो जाए एकदम। तो इसलिए देखो, हमारे यहाँ ये कर्म फिलोसफी को श्रेष्ठ करने का सबसे मुख्य आधार ही है कि जो पास्ट में हुआ हो गया। अब 2 बच्चे होते हैं, देखो 2 बच्चे, एक बच्चा जन्मते ही एकदम क्रोधी होता है, नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, जबकि उसको वो ट्रेनिंग दी नहीं है, माँ बाप ने वो फिट नहीं किया है उसके ऊपर। पर ऐसा कैसा बच्चा है ये, तुरंत लड़ाई झगड़ा उतने शुरू कर लेता है। दूसरा बच्चा बहुत शांत है, मुस्कुराता है, कितना आज्ञा, तू देवता है बेटे, बोलता है ना। उसमें क्या डाउनलोड है, उसमें क्या डाउनलोड है, बोलो। ये फ्रेश सोल है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी डाउनलोड हुआ ही नहीं है, संस्कार में नहीं पड़ा है। वो अगले जन्म का संस्कार लेकर के आया ना। तब तो देखो उसको किसी ने ट्रेनिंग दी, माँ भी वैसे एक्टिविटी कर ही नहीं रही थी, बाप भी नहीं कर रहा था, कोई उसके साथ के छोटे बच्चे कलीग भी कोई नहीं कर रहे थे, पर ही इज एकदम लर्न है वो, क्योंकि उसके अंदर प्रवेश अगले जन्म के ऐसे कर्म डेस्टिनेशन के रूप में आकर के, वो उसी डेस्टिनी के रूप में आकर के उसको एक्सप्रेस कर रहे। तो ये है प्रीवियस जन्म के कर्म हमारे। अब यहाँ जो बच्चा है, जो बच्चा फ्रेश अपने चाहे ओरिजिनल लाइफ में आता है, उसकी कैसी होती है हालत। बच्चे तो आप सबके हैं, 6 महीने का नीचे का बच्चा जिसमें कोई चीज़ प्रीवियस लाइफ की डाउनलोड नहीं हुई है, ऐसे संस्कार पड़े नहीं है, ऐसा उसने अपना डेस्टिनी बनाया नहीं है, उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, ब्लूमिंग फ्लावर के जैसे सदा खुश रहेगा। यहाँ भी आते हैं, हमारे क्लास में आते हैं कोई बच्चे, बस शांत होकर के वो सब एटमॉस्फेयर का मज़ा लेते हैं। कोई ये वो ओ माय गॉड, सबका जाने मेडिटेशन डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार है नहीं, और इसके अंदर संस्कार एंजॉय कर रहा है। तो अब हमको भी देखो, हमने जो अपने बीइंग के अंदर जो भी चीज़ डाउनलोड कर दी हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो इंजॉय करेगा आपको लाइफ को। मेरा लाइफ द ब्लेस्ड लाइफ है, वरदानी लाइफ है। और जो बिल्कुल सेकंड बाय सेकंड अपने आप को हर्ट करके ये वो स्ट्रेस, हरी वरी टेंशन में जा रहा है, नींद खराब हो जा रही है उसकी, ये हो जा रही, तो उसको तो फिर सावधान है। अब उसने अब हो गया, पास्ट का तो जो आ रहा है उसमें आपका हाथ नहीं है, पर वर्तमान को ऐसे करो कि उनके लिए आप ओरिजिनल वैल्यू का आधार लो। उन ओरिजिनल वैल्यू को उसमें ऊपर डाउनलोड करके संस्कार के रूप में प्रेरित कर देंगे। तो फिर अगर आपके सीडी में डेविल एंड डेमन सॉन्ग भरे हैं, डेमन और डेविल सॉन्ग भरे हैं,
आपका मन लगता है क्या डेविल एंड डेवन सॉन्ग बजते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ, क्या करोगे? सीढ़ी चेंज करोगे? हाँ देखो वो भाई जी, हाँ वो भाई जी ने बोल दिया, उसके ऊपर ओवर राइड कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे। क्लासिकल सॉन्ग आपको पसंद है वो भर दिया, आहा ये मज़ा है ना, मेरे को आनंद आ रहा है। तो ऐसे देखो आप जिस भी संस्कारों से आज परेशान हो, अब उनको जो आगे भर गए हैं उनको आप नहीं बदल सकते, पर अब तो अच्छा डाउनलोड करो। यही है कर्म फिलोसफी का ज्ञान। अगर इस चीज़ को सिंसियरली आप यूज करेंगे तो आपके परिवार में जो आज तक थोड़ी थोड़ी बातों में अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं, पर समझते हैं कि क्या करूं, इसको डाइवर्स दे दूं या मैं चला जाऊं, ये चला जाऊं, वहाँ तक पहुँच जाते हो। पहुँचते ना बहुत, मैं देखो कोर्स करने में बैठता हूँ, इतने लोग सदमा लेकर के चेहरा बिगाड़ करके आते हैं। क्या हुआ, बात मत पूछो भाई जी, मैं तो एकदम डाइवर्स करने की स्थिति में। अरे बाबा, आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है। कितने साल रिलेशन में रहते? 8, 9, 10 वर्ष का है, अभी आकर के ऐसा शैतान बन गया। देखो जब किसी से अपना पहले प्यार होता है उसमें कैसे बात करते हैं, व्हिस्परिंग, ठीक है, देखते हो ना आप, दोनों की पूरी लैंग्वेज व्हिस्परिंग होती है। कब? जब वो प्यार की स्थिति में थे। प्यार भी ऐसा सौहार्दपूर्ण प्यार था जिसमें कोई गिल्टी नज़र नहीं आती, एक दूसरे की अवगुण की स्थिति नहीं थी, देयर वॉज नो बैरियर एंड नो ऑब्स्टिकल नहीं है, तब दे आर एंजॉयिंग द लाइफ, दैट इज ब्लिसफुल लाइफ, राइट। देन आफ्टर धीरे 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 उनकी ब्याह शादी होती है, इत्यादि होती है। अब ब्याह शादी होगा तो बहुत चीज़ के एटमॉस्फेयर के बीच में जाएंगे पति पत्नी। पर ये दोनों ही मिलते थे, आइसक्रीम खाना, ले भाई तुम, मैं भी खाना, तुम एप्पल खाओ, मैं भी एप्पल, तो भी ऑरेंज, बस ऐसी थी। अब आपके पारिवारिक स्थिति में तो ये एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। कोई चीज़ उनकी पसंद का खाना होगा, कोई आपकी पसंद का, हर एक चीज़ चॉइस तो डिफरेंट होती जा रहा है ना, मार्केट बड़ा है नहीं। तो उस समय क्या होता है कि अब पति बोलता है कि सीनियर को थोड़ा सम्मान देने की बात आएगी। अब पत्नी बोले मैं तेरे साथ ब्याह शादी की हूँ, मैं उनके साथ क्यों, मतलब अब आ रहा है ना, उसके आगे बैरियर आ रही है। तब जैसे बोले कोई शादी करते समय आती है, बैंड बाजे बजाते हैं ना, तो किसी औरत के मन में ऐसा होता है जिसके अंदर नेगेटिविटी डाउनलोड है, तू तो आज बैंड बजा रहे, तेरी लाइफ भर बैंड बजाऊंगी। ऐसी मनस्थिति वाले भी होते हैं, उनका चाहिए ना, पर कोई नहीं मैं घर को स्वर्ग बनाऊंगी, जा रही हूँ, ये हूँ करके आती हैं। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति आती है ना जब, तब देखो वो जो प्योर स्नेह है वो किस में बदलता है, बोलो आप बताओ। हाँ जी, हाँ जी, और बताओ उसका नाम तो बोलो। गुस्सा तो है, पर वो गुस्सा किस में, वो प्यार किस में परिणत हो गया? एक्सेप्ट करते तो लड़ाई झगड़े ही नहीं होते ना भाई साहब। एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहे हैं तब तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना। हाँ, नेगेटिविटी तो है पर उसका नाम है रिलेशंस। और रिलेशनशिप तो अच्छा चीज़ है, वहाँ तो दुश्मनी की बात आ रही है, बदलाव की बात आ रही है, डाइवर्स होने के बाद तेरा कहना बिल्कुल मैं ना हूँ, तू तेरा चेहरा नहीं देखना चाहूँ, मैं भी तेरा चेहरा नहीं, ये इसी बात आती है। ईगो है क्या? हाँ ठीक है, हेटरनेस भी आती है, क्रिटिसाइज आती है, जेलोसी आती है, कमेंट आते हैं, अनेक चीज़ें आते हैं, कंपैरिजन की बात आती है, मेरा घर ऐसा था, तेरा घर खराब है, ये वो अनेक चीज़ें आते हैं, बड़े जंगल में हम फंस जाते हैं। उस समय देखो अब प्यार ने अटैचमेंट का रूप ले लिया। प्यार का एडिक्ट रूप क्या है? लव का एडिक्ट रूप क्या है बोलो? एडिक्ट रूप बोल रहा हूं लव का, अटैचमेंट है। अटैचमेंट दुखी, देखो दो प्रकार के आंसू आते हैं। देखो यहां से स्नेह के मोती आते हैं, सुख के होते हैं। देखो ओलंपिक में देखते हो, ओलंपिक में इतने इतने गेम खेलते हैं ना, जिसको गोल्ड मेडल मिलता है, डिक्लेयर करता है उधर, ओ रो रहा होता, पर ही इज़ नॉट हर्ट, ही इज़ कम्प्लीटली एक्साइटेड, ओवर सेंसेस जॉय में। तब यहाँ से आते हैं, इनको मोती कहते हैं। जैसे आप ये भाई को बोला
आज आपको पद्मश्री भूषण मिल रहा है कि समाचार, ओ बाबा इधर से आएंगे, खुशी के आंसू। आपकी जॉब गई, हाँ, दुख से। तो दुख के आंसू से तुरंत हमारे अंदर में हलचल आ जाती है, ब्रेन डिसऑर्डर जाने लगता है, थॉट पैटर्न बिगड़ जाता है, रेस्पिरेशन बिगड़ जाता है, हार्ट बीटिंग बिगड़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, फिर रात की नींद भी हराम है। बार बार मेरे को निकाल दिया, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँ, जंगल पूरा पैदा हो जाता है। इसलिए देखो परमात्मा पिता का कहना यही है, पॉजिटिविटी का मतलब यही है कि हम जैसे भी सिचुएशन हो उस तरफ आपकी यदि मेंटालिटी है, मुझे अब वर्तमान जो भी पूर्व कोई भी पहले का आया होगा मेरे सामने, मेरी डेस्टिनी के सामने मैं पहुंचा हूं, जिसका मैंने एज यू सो सेल यू रीप, मेरे सामने वो पौधा आया, पर अब तो अच्छा लगाऊं, अब तो इस हैबिट को, इस जो संस्कारों को चेंज करने के लिए आपके पास कोई पावर है कि नहीं है? है, पर आप तो उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हो। जहाँ क्लिक करो बोला वहाँ क्लिक नहीं, जहाँ नहीं क्लिक करो वायरस पे क्लिक कर देते हो। वायरस में क्लिक करके बाबा सारा वायरस ने स्क्रिप्ट को ख़त्म कर दिया। फिर आप कैसी कर्म की फिलोसफी आपके, और दूसरा डेस्टिनेशन बुरा बना दिया, फिर उसको फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे आगे आता है उसके लिए अगर आपके अंदर गोल्डन प्रिंसिपल बना लो, अब ऐसा खेती करने वाला नहीं हूँ, ये कांटा की खेती कभी हुई होगी, अब मैं नहीं करूँगा, अब तो मैं अमृत की खेती करूँगा, अथवा मोती की खेती करूँगा, अथवा जो भी अच्छी चीज़ की पॉजिटिविटी करूँगा। ये प्रिंसिपल लॉ को आपने अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लिया, फिर आपको लगेगा हाँ अब मैं भी। तो इसलिए सबसे मुख्य बात देखो, संसार में एक है राइटियस एक्शन है, एक है अनराइटियस एक्शन है। तो अनराइटियस एक्शन की जड़ क्या है? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। यही अनराइटियस हमारे से कर्म होते, वही हमारे लिए एक डेस्टिनी के रूप में हमारे आगे आता है, फिर हमें भोगना पड़ता है ना। फिर कोई ये सारा संसार 800 करोड़ भी आपकी भाग्यों पर, भगवान भी नहीं बदलता। भगवान बोलता है नहीं, ये तुमने, जैसे हम कहीं किसी से गलती कर लेते हैं, किसी को हर्ट कर लेते हैं, किसी को दुखी कर लेते हैं, अब भगवान के मेडिटेशन के रूम में जा कर के भगवान मुझे माफ़ कर देना, फलाना को इसे रुलाया, उसको तंग किया, उसके बारे में ये किया, तो भगवान हंसता है। क्यों हंसता है बोलो? मैं तेरे बुरे कर्म का डस्टबिन हो क्या, मेरे को डाल रहे हो मेरे में, बोलता है ना भगवान। क्या जा, जिससे गलती की है, जिसको रुलाया है, जिसको तंग दिया है, जिसको हर्ट किया है, उससे पहले एक्सक्यूज़ मांग के आ। अगर दूर है वो उसका सन्मुख भेंट नहीं, मोबाइल से तो बोलो, किसी से बोलो, नहीं मैंने कोई माइंड नहीं किया है, सॉरी, मैं आपको कोई आपकी चीज़ दिल में नहीं रखी है, तो वो वाइप हो गया। वो कर्म आया था, परंतु आपने एक्सक्यूज़ मांग ली। अब भगवान के पास जाता, हाँ बच्चों बैठे, अब तेरे को मैं अमृत के ये मोती बहाऊंगा, क्योंकि तूने कर्म फिलोसफी ठीक करके आया है। अब आप अपने घर में बच्चे को जाने देते हो? गंदा पैर बना के सब लथड़ा पथड़ करके आ गया, जाने देते हो? इन करते हो? माता जी बोलो, आप इन करते हो बच्चे को? क्या करोगे? पूरा साफ सुथरा बना के एकदम फिर इन करते हो। पर यहाँ तो हम इन करते रहते, जाओ गंदगी लेकर आ जा, क्योंकि आँख गंदगी लाता है, मुख गंदगी लाता है, कान गंदगी लाता है, नाक, हाथ, उसके बाद तो मन, सारा बड़ा गेट तो उसका है। पर इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी को हम इन करते हैं तो हम परेशान हैं, इतने परेशान हो जाते, बाबा नींद नहीं आती। वो मेरी औरत 20 वर्ष से मैं रहता था, आजकल तो मुझे ऐसे लगे डंकी नहीं जैसे लगता। ओ बाबा, ये शब्द प्रयोग कर रहे हो आप, उनके साथ अपना जीवन का कारोबार किया, लाइफ पार्टनर है वो, तो उसके लिए देखो ये चीज़ें बहुत ही, देखो एक दूसरे के लिए क्या करो। हम यहाँ बोलते हैं, जो आपकी निंदा कर रहा है उसके ऊपर कौन सी वर्षा करो? फूलों की वर्षा करोगे, और वो मेरे को फूल कर दी, ऐसे फेंक देगा। कैसा हुआ देखो, एक रास्ता में एक कपल था, सक्सेसफुल स्टोरी की बात बोला मैंने, हैपनिंग स्टोरी की बात बोला, कोई ऐसी कपल को चीज़ नहीं है। तो हस्बैंड एंड वाइफ थे, पति जॉब करता था, वाइफ घर में रहती, पर उसका इतना प्यार और पुरस्कार देती थी उनकी मिसेज की,
जब भी वो जॉब में जाएगा फुल ऐसे देखेगी, बाय माय मोस्ट बिलवेड हस्बैंड करके विदाई करती थी, हंस करके मुस्कुरा करके। वो बोलता था यार मेरा घर तो हेवन है, क्योंकि विदाई भी ऐसे करती थी। सब शाम को आता था, मोस्ट वेलकम, कम ऑन बिलवेड, और चीज़ खातिरी करती थी, घर हेवन जैसा था पूरा। अब ये तो हम तो कैसे, किसी दिन पति वहाँ से थक के आएगा समझो, या पत्नी जॉब करेगी वो थक करके आई, सारा नेगेटिव सॉफ्टवेयर भर के आए रहे, क्योंकि अब ऑफिस का तो वातावरण होगा। तूने क्या किया, मैंने क्या कम किया क्या हो गया बोलो, उसमें क्या हुआ? आग में पेट्रोल डाल दिया ना, पेट्रोल डाल दिया तो महाभारत शुरू हो गई। समझो आप सड़क में जा रहे हो ना, आपने ठक्कर दे दिया। इतना बड़ा सीनियर सॉफ्टवेयर का मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे को ठक्कर देता है, दिखाता हूँ तेरे को, निकल गया गाड़ी से, वो भी निकल, तो भी मैं भी कम हो गया। वो भी 1 सेकंड में, एक हॉस्पिटल में, एक पुलिस स्टेशन में, किस लिए पहुँचे बोलो, बताओ ना भाई जी। सब साइलेंट में, आज म्यूट हो गए आप, क्यों? नेगेटिविटी अप्रोच किया, नेगेटिव अप्रोच है, प्रेजेंट को नेगेटिव से स्टार्ट किया। अब और दूसरी डेस्टिनेशन आपने बना दी, डेस्टिनी बना दी, वो दूसरा भाग्य बुरा हो गया। अब बेचारा तड़प रहा है हॉस्पिटल में, ये पुलिस कस्टडी में है। 1 सेकंड में हम नेगेटिविटी के कारण कहाँ का कहाँ पहुँच गए। 2 माइंड बोलते हैं अंदर, एक क्या बोलता है, नहीं छोड़ो, वो भी नहीं पहचानता, मैं भी नहीं पहचानता, छोड़ो इसी बात छोड़ो। अगर उसकी सुनी, हाँ भाई साहब कोई हर्जा नहीं, होता है और चले गए, बच गए ना। ये क्या है? पॉजिटिविटी का फुल स्टॉप लगाना। फुल स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन मार्क कीजिए, बोलो फुल स्टॉप कीजिए। बच्चा भी करके लगा देता है, तो बच्चा जिसको जानता भी नहीं क्या है, हाँ पेन ऐसे टिकर आ गया, फुल स्टॉप आ गया। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है, नेवर एंडिंग क्यों, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे करते, ये ओ माय गॉड। Now my mind became jungle of all negativity and I'm in stress. I'm in hurry, worry, tension and so many things are happening. Then even subconscious mind भी हुआ, सपना में भी ओह ऐसा हो गया, वैसा, अरे क्या हुआ, यहाँ तो कोई भी नहीं, पर सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ। तो एकदम सूक्ष्म और बहुत एक्शन में आ गए, तो प्रैक्टिकली यही हो गया। तो ये सब चीज़ से अगर आप अपने इस बीइंग के अंदर सब संस्कारों के अंदर फिट कर रहे हो, तो कर्म फिलोसफी का मिस हो रहा है हमारे से। ऐसा कर्म हम बोए जा रहे हैं जिसका हमें बहुत ही भोगना पड़ेगा तड़प करके। इसलिए देखो कर्म फिलोसफी यही आपको बता रही है कि देखो कैसे होता है। देखो आपने नोबेल प्राइज़ जिसके नाम से है, नोबेल प्राइज़ का जो मालिक था वो, उसने चाहे अमेरिका में समझो, उसने अपने चाइने जो भी पहले उसने डायनामाइट का रिसर्च किया, ठीक है, डायनामाइट होता है जिसने ये पत्थर तोड़ते हैं अथवा कोई बम में इत्यादि में यूज़ होता है, उसका रिसर्च किया। रिसर्च होते बाद बहुत सड़कें बनाई पत्थर तोड़ के। ऐसा हम तो हैदराबाद में देखो 12 मास चलता ही रहता है डायनामाइट, सिर्फ 15 अगस्त को नहीं चलाते, 26 जनवरी को नहीं चलाते, बाकी और दिन हर रोज़ ये चलता रहता है यहाँ डायनामाइट। तो उसने सब किया, सब कंप्यूटर, परंतु उसी के बीच में डायनामाइट ऐसा भी हुआ कि जिसके कारण उसके भाई की भी मृत्यु हो गई उसमें, क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, उससे मृत्यु भी हो जाती है। तब फ्रांस के एक न्यूज़पेपर में उसका न्यूज़ निकलता है कि मर्चेंट ऑफ डेथ डाइड। किसको बोला? नोबेल प्राइज़ के जो ऑनर था जिसने ये रिसर्च किया था, उसका न्यूज़ निकला कि भाई मर्चेंट ऑफ डेथ इज डाइड। ओ माय गॉड, मरने के बाद मेरा ऐसा इतिहास में ये लोग न्यूज़ छापेंगे क्या? ये काम मेरे से अच्छा नहीं होगा। बनाया था उसने अच्छे पर्पज़ के लिए बनाया था। देखो चाकू बनती है, किस लिए बनती है बताओ? कौन बोलेगा चाकू किस लिए बनती है? किस लिए बनाया है? इसका इन्वेंशन क्यों हुआ? हाँ क्या बोलता है बताओ, एक जना तो बोलो। हाँ जी, क्या वेरी गुड। समझो वेजिटेबल काटने के लिए, फल फूल काटने के लिए। तीसरा ऑप्शन ऑपरेशन के लिए।
है ना, वही चाकू यूज़ करता है डॉक्टर भी। तो 3 चीज़ ओके है कि नो है? ओके, एक्सेप्टिंग। और वो चाकू कहाँ यूज हो रही है? ये मिसयूज हो गया ना। तो इसलिए देखो, जो चीज़ भी यहाँ बनी है, यहाँ पॉजिटिव भी नेगेटिव भी इफेक्ट है, इसलिए हम परेशान हैं। इसी मुख से आपको बहुत मधुर शब्द बोल देते हैं, किसी का दिल खुश कर देते हैं। क्या मीठी बोली बोलता है, जैसे इसके मुख से मोती गिर रहे हैं। इसी मुख से ऐसी तड़पने वाली बात बता दी। अगर सूरज सिंह भाई ने आपको भलगली एक 20 वर्ष नहीं बोलोगे, उसने ऐसा बोला था उस दिन, ऐसा बोला था, ऐसा बोला, बार बार वो आएगा। सबसे बड़ा बाण तो शब्दवेदी बाण बोलते हैं। ये 32 दांत के बीच से जीव ने ये निकाला, दिल को हर्ट हो गया। तो मनुष्य ही एक असुर का काम करता है, मनुष्य ही देवता का काम कर सकता है। पर देवता और मनुष्य में क्या फर्क है? हाँ शाबाश, और बताओ। सिर्फ पॉजिटिव सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, वो पॉजिटिव वैल्यू को यूज़ करते हैं, तब उनके जीवन में सदा खुशहाली। आज भी बोलते हैं, ये शरीर छोड़ा कहाँ गया? स्वर्ग पधारा। गया स्वर्ग में? गया? सब सिर हिला रहे हैं। गया स्वर्ग में? बहुत बड़ा डाकू था, मारा काटा, बहुत चीज़ों की हत्या ये कर दिया, खून खराबा कर दिया, स्वर्गवास हो गया। मिलेगा स्वर्ग में एंट्री? कहाँ मिलेगी उसको? अभी युग कौन सा है? कलयुग है ना, ये तो कलयुग है ना। संगम तो उसके लिए है जिसने आत्मा ने अपने पिता के साथ ज्वाइन कर लिया, यूनियन बना लिया। ही इज इन ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज। Otherwise, those who don't know who I am, who is my creator, with whom I have to channelize, with whom I have to connect, this is not known to them, they are in the iron age. नहीं, तो इसलिए जो है, हम जिसके पास देखो, देवी देवताओं के पास सिर्फ पॉजिटिव सॉफ्टवेयर होने के कारण उन्होंने संसार में इतना मौज लूटा, इतना मौज लिया, तब उनके संसार को स्वर्ग कहा जाता था। पर अभी नर्क में मरने वाला कहाँ जाता है भाइयों, बोलो? नर्क में जो भी मरेगा अभी, क्योंकि जनवरी के महीने में जनवरी है, फरवरी नहीं है, मार्च दिसंबर लास्ट में देखो है ही नहीं ना वो टाइम था। अभी युग के अनुसार हम कहाँ हैं? अभी कलयुग में है। तो जो भी मरेगा वो स्वर्गवास हुआ। कब होगा स्वर्गवास? जब स्वर्ग आएगा धरती में, तब मरने वाले स्वर्ग में जन्म होंगे, उनका नर्स किस कोई सरोकार नहीं। तो स्वर्ग में कौन एंट्री पाएगा? वही पाएगा जिसके पास टोटल पॉजिटिव सॉफ्टवेयर अंदर डाउनलोड है। उसी को लाल लाइट ब्लिंक ब्लिंक करके सिंपल इमिग्रेशन में जाते हो, जब आपके लगेज में कोई चीज़ इलीगल है, कैसा होता है लाइट? अरे ओ माय गॉड, इधर आओ चेक करो क्या है, ओ जाओ, कार्रवाई होती है। किसके पास कुछ भी नहीं ना, ग्रीन सेंड, जाइए यू आर मोस्ट वेलकम बोलते हैं। तो हम पहले तो अपने लाइफ के गेट को खोलने के लिए तो हम एक ऐसे में ग्रीन में रहेंगे, ग्रीन सिग्नल में। देखो कहीं भी ट्रैफिक होता है, रेड लाइट उठती है तो क्या करते हो? स्टॉप। क्या स्टॉप करना है? हाँ जी, आपका जो नेगेटिव फ्लो ऑफ थॉट्स है उसको स्टॉप करो। रेड लाइट माने आप आत्मिक समृद्धि में आ गए, सोल की बीइंग की समृद्धि में आ गए। स्टॉप। जब सोल की पूरी अपने अंदर फीलिंग आ गई, तब आपके लिए ग्रीन सिग्नल मिलेगी। तो पॉजिटिविटी ग्रीन सिग्नल है, नेगेटिविटी ब्रेकफास्ट किसको बोलते हैं? बहुत थक गए, आपका भोजन खत्म हो गया, थोड़ा रुको, खाता हूँ, एनर्जी भरता हूँ। तो अपने आप को देखो, दिन में ये देखो कि अब उधर से नेगेटिव बॉल आ रही है, आएगी, बोल दिया उसने, यहाँ तक तो पहुँचेगी, परंतु अब मैं क्या बोलूँ, क्या फेंकूँ उसके आगे? बोलते तो हैं वाइट बॉल, पर यहाँ वाइट है कि नहीं? वाइट थॉट, पॉजिटिव थॉट, एक्सेप्टेबल थॉट है, तब हम उससे रिएक्टेड नहीं होते, हम काम कूल रहते हैं। हमारे लिए वो सिचुएशन भी एक हमारे लिए बेस्ट टीचर बन जाता, बेस्ट गाइडलाइन हो जाती, ताकि उसके के कारण हम अपने आप को हर्ट नहीं करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस नहीं करते, अपने आप को डिप्रेस में नहीं ले जाते। इसलिए कर्म फिलोसफी का यही आप सार समझो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं।
एक कर्म है पॉजिटिव कर्म, जो सकारात्मक कर्म है। वो कर्म कैसे होता है? जब हम ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं अपने सोल की, उनका सब प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा पॉजिटिव में आ जाता है। उस समय हंसना, जोर से हंसते हैं तो उस समय क्या है? रावण के जैसे हंस रहे हैं हम, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो कैसा है? देवताओं की जैसी स्माइल। हर एक्टिविटी में दूसरे का गुण देख रहे हैं, हमारी आंख से गाइडलाइन से कि पॉजिटिव। किसी के अवगुण देख रहे हैं, गए काम से चश्मा बिगड़ गया हमारा। मुख से खुश करने वाले बोल बोलते हैं, ऐसे बोल दिए, अरे बाबा उसके दुख के आंसू आ रहे हैं। कौन सा बनाया आपने? डेस्टिनी बिगड़ गया। इसलिए देवताओं को वेल ट्रेनिंग थी इस संसार में रहते हुए। देवता कोई आकाश में रहने वाले नहीं है, बट दे आर डिवाइन ह्यूमन बीइंग। दे लर्नड एंड अप्लाइड, दे हैव देयर पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ स्टाइल. So that's why they were benefited whole life. They never have such a disheartened, disappointed, stress, hurry. No, nothing. They have catched their life due to positivity, positive thoughts and positive behavior, positive attitude, positive words and positive deeds. All through positivity, they were colored, impressed. That's why they were not reacted. But those who are, even though staying on this earth, but they are inviting negativity, negative thoughts, negative feelings, negative words, negative deeds, and negative attitudes, moods, everything, behaving, all negativities हैं, वो लोग सफर हैं. तो नेगेटिव एक्शन का आधार है नेगेटिविटी. पॉजिटिव एक्शन का आधार है क्या? पॉजिटिविटी. किसको अपनाना है आपको? विष को अपनाना है कि अमृत को अपनाना है? बोलो. अमृत को. ऑब्वियसली दिस इज गुड सेलेक्शन. पर कहाँ कहाँ वो उधर से विष सप्लाई कर रहा है, पॉइजन सप्लाई कर रहा है. मैं भी, उसने एक शब्द बोला, मैं 10 बोलूँगा. पहले क्या बोलते थे? ईंट का जवाब पत्थर से दो. ठीक है ये फिलोसफी? देना है? ऐसे ही करते. एक झपट गया तो मैं 2 लगा दूंगा. इसी के कारण हम हर्ट हैं, इसी के कारण प्रॉब्लम में. परंतु नहीं, हमें चाहिए उस समय समझना है कि अभी इसने मेरे को लगाया, मैंने अभी तो कोई गलती नहीं किया, परंतु ये लगाया. मैंने कभी इसको दिया हूँगा, तभी अभी ये लगा रहा है. अगर हाँ अभी गलती करने के बाद लगाया, मैंने बनाई डेस्टिनी, मैं भी लगाता हूँ, वो भी लगा रहा है. बस दोनों का कारोबार चल रहा है. अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, आप इनोसेंट है, कोई ऐसा मिस्टेक कोई भी नहीं किया है, वो कर रहा है, मैंने अगले जन्म इसको झापड़ मारी होगी, ये मेरे को मार रहा है. कर्म फिलोसफी यही बताती है. देखो, तो इसलिए देखो, एज यू सो सोशल यू रीप का मतलब यही है कि संसार में हम आए हैं, जो चीज़ हमें कुछ भी किए बिना हमारे आगे आ रहा है, तो वो चाहिए मेरा ऐसा कर्म हुआ है जिसका आ रहा है, और मैंने अभी अच्छा कर्म किया हूँ, मेरे आगे बुरा आ ही नहीं सकता. इस चीज़ को विश्वास करो कि मैं जब पॉजिटिव सॉफ्टवेयर आता यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा अब इसका जो है डेस्टिनी मेरा बुरा नहीं बनेगा. मैं भाग्य का अच्छा निर्माण कर दिया हूँ. और जो पहले का आ रहा है ओके, उसको भी अब मैं कैसे बदल सकूँगा? बोलो. उसके लिए भी हमारे वैल्यू ही बदलने के लिए, आपको उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे अंदर पेशेंस, पावर, सब चीज़ आएगा. अब इन चीज़ को अभी जाएंगे आप घर में. इतना देर कहाँ बैठा था? 8 बजे 8:30 बजे घर आ रहा है. बोलेंगे क्या करोगे आप? वो 9 बजे आता है, वो 10 बजे आता है, मैं आया तो क्या हुआ? यही बोलते हो कि नहीं आज थोड़ी देर होगी, सॉरी माफ़ कर देना. हार्मोनी किसको बोलते हैं? बोलो. हार्मोनी का मतलब क्या है? कौन बताएगा? बोलो, हाथ खड़ा करो जो बोले. हार्मोनी का मतलब कौन है? बताओ. ये गजब बोल रहा है. देखो भाई, ये तो इसका लाइन क्लियर है. आज ताली बजाओ. देखो, वाह. देखो बच्चे भी एकदम खुश हो रहे हैं, क्योंकि हार्मोनी का मतलब क्या होता है? चलो उसने नेगेटिव अप्रोच किया हमारे साथ, पर हम भी नेगेटिव अप्रोच क्यों करें? ओके, मैं चाहिए अब इसको चाहिए इसका रिएक्शन मैं नेगेटिविटी से नहीं करूँगा. हमारी दादी प्रकाश मणि जी बोलती थी, जो हमारी संस्था की चीफ थी. वो क्या हो गए, 2 भाई कंप्लेन लेकर के आए दादी माँ के आगे. वो बोलता है, दादी जी इसको निकाल दीजिए.
ये गलती है, कोई बड़ी गलती नहीं है, खाली काम करने में इधर असावधानी हो जाती है, वो लेकर गए, इसको निकाल दीजिए दादी, इसको निकाल दीजिए बोल रहा है। दादी प्रकाश मणि जी, ओ माय गॉड, शी वाज सो डिवाइन, रेवर्ड दादी जी थे, उनके व्यक्तित्व में क्या नहीं था, उनसे हम सीखे हुए हैं। देखो दूसरा भाई बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, देखा ये कुछ नहीं बोल रहा है, इसने किया है करके और सपोर्टिंग दे रहा है वो। दादी माँ को तो वो तो और रीड करती थी, सबके अंदर के वाइब्रेशन रीड करती थी दादी माँ, ऐसे देख लेती, उनके अंदर बहुत फर्क थी। दादी ने बोला अब सिचुएशन टफ आ गया है, इसके अंदर का नेगेटिव नहीं निकल रहा है, अब ये बेचारा साइलेंट है, कोई अपना क्लैरिफिकेशन अपना चाहे कोई विटनेस तो दे ही नहीं रहा है, प्रूफ नहीं कर रहा है वो। तो तब दादी माँ ने बोली इस सिचुएशन में ऐसे करूँगे, अच्छा भाई मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, दोनों मेरे भाई हो, मैं घर के लोगों को, एक बड़ा भाई थोड़ा, छोटा भाई थोड़ा गलती करता है, घर से थोड़ी निकालते थे। आओ, दिलखुश टोली होती है, एक पिस्ता की टोली होती है, इतनी स्वादिष्ट होती है क्या बताऊँ। मैं उसी टोली से भी, टोली माने स्वीट्स को बोलते हैं, दादी ने मंगाई, जो पहले बहुत रिएक्टेड है उसको दियो, तू बड़ा ज्ञानी है, तू बड़ा अच्छा समझदार है, बोला, उसके कोई अवगुण नहीं देखे। इतना मैंने दादी के सामने इरिटेशन होकर के अपना रिस्पॉन्स किया, फिर भी दादी मेरे को प्यार करी, वो भी बेचारा साइलेंट ही था। ओह ठीक है ना, आप दोनों मिल गए, दोनों गला मिलो, दोनों भाई मिले, ओम शांति, गए ना काम। आग बड़ी लेकर के आए थे, परंतु ये वो नेचर हमारे जब रहते हैं तो तब इस संसार में चाहे भला बोले, चाहे बुरा बोले, चाहे अच्छा बोले, चाहे और नहीं बोले, सब बोले तो भी इसी को कहते हैं आग लगे बस्ती में हम तो रहेंगे। आग लगाना नहीं है, परंतु नेगेटिविटी की आग आई है, पर हम पॉजिटिव सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसमें भी हम अपने आप को आनंदित करते हैं। ठीक है, कोई को पूछना है तो पूछो, किसी की क्लैरिफाई नहीं मिली हो तो फिर मेरे को मारोगे, बोलो, किसी का रह गया कुछ गुठली, बोलो, सब ठीक है, सेटिस्फाइड, यस बोलो। देखो बच्चा कितना आनंद से बोल रहा है। इसीलिए देखो जितनी बार आप पॉजिटिव चीज़ को रिपीट करेंगे वो आपकी हैबिट के रूप में चले जाएगी। हम क्या थे, नेगेटिविटी चीज़ को ज़्यादा अटर करते हैं, फिर नेगेटिव संस्कार डाउनलोड हो जाते हैं। इसलिए देखो आप सबकी इतनी सेवा हम बाबा आपकी कर रहा है, हर रोग कई तो लोग वर्षों से आ रहे हो, पर अपने आप पे अब धीरे धीरे चेंज लाओ, तब आपकी यात्रा हो। अभी तो 20 किलोमीटर था, अभी 18 रही, अभी 15, अभी 10, अभी 8 है, 7, ये मैं पहुंच गया डेस्टिनेशन में। ऐसी अवस्था बनाओ, तब देखो आपका यहाँ आना भी एक वरदान सिद्ध हो जाएगा। तब आप लगेंगे वाह रियली मेरी लाइफ को कैसा इसने चेंज किया। हर एक के जीवन में यही होता है ना, अंगुलीमाल में बुद्ध के साथ चेंज हुआ, रत्नाकर डाकू था वो वाल्मीकि ऋषि बना, हर एक का ऐसे होता है, चेंज होता है। पर एक चीज़ हम अभी की यात्रा से अपने आप को सुधारते हैं, एक प्रवेश से ऐसे आते हैं, फिर उसको भी एडजस्ट करते करते जाते हैं, फिर वही गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है। आपने अब्दुल कलाम जी की कहानी सुनी है, कितना उनकी पॉवर्टी लाइफ थी, न्यूज़पेपर बिक्री करते थे सब। वो देखा एक ब्राह्मण ने, ओहो इतना अच्छा सुकुमार बच्चा, ऐसा, इधर आओ मेरे पास रह जाओ, मैं सब सेलिब्रेशन दूंगा, पढ़ो लिखो ये करो, नहीं और सब करते करते उस 0 माइल से उनकी यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते कितना वेल एजुकेटेड बनाया उनके अंदर। क्योंकि जो चाहे कोई विशेष आत्मा होती है, हीरा होती है, उसको मिट्टी से ढकाए तो पूरा उसकी लाइट दिखाई देती है ना। तो फिर उसके बाद देखो इतना बड़ा मिसाइल मैन हुए, उसके बाद कितना भारत के राष्ट्रपति हुए। जाते समय जब उनको चाहे भारत रत्न का पुरस्कार मिला था, उनके पास चप्पल और कोई कपड़े जो है नहीं थे, सवारी नहीं थी, नेशनल ड्रेस में मेरे पास है नहीं। फिर क्या करे, आओ उसी से आओ, बोला बस उसी से लिया उन्होंने पास। ये जूते भी नहीं थे, चप्पल लगा गए। पर सिंप्लिसिटी भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो सोचते हैं सूटेड बुटेड आया मैं ऐसा हुआ, अरे दिस ऑल आर बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस। जाओ इनर ब्यूटी बनाते, आउटर ब्यूटी बोलो, क्या करना है बोलो,
हाँ, इनर ब्यूटी का मतलब क्या है? आपके अंदर अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिव डीड्स आ रहे हैं, तो पॉजिटिव सारा चीज़, एटीट्यूड ही पॉजिटिव हो गया, फिर आपका जीवन शून्य में सुहागा हो जाता है। अगर वो चीज़ नहीं है फिर तो जितना भी बाहर का करो नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। बहन जी आ रहे हैं, इशारा दे रहे शायद नहीं। देखो सभी ताली बजाओ। देखो मैं तो आपके लिए ऐसे कोई विशेष चीज़ नहीं लाया हूँ। देखो मैं तो अपने जीवन की आपको शेयर कर रहा हूँ अनुभव को। कोई चीज़ आप वेद शास्त्र पुराण की ऐसी कठिन बात नहीं समझिए। तो सिंपल लाइफ की चाहिए, नहीं एक वैल्यू बेस्ड लाइफ की चीज़ें। आप सबको मैं परमात्मा पिता के तरफ से दुआ आशीर्वाद देता हूँ कि आप हर रोज़ वैल्यू बेस्ड हो करके इनर ब्यूटी को फ्लोरिश करिए, एम्पावर करिए। आउटर ब्यूटी स्वभावतः जिसके पास इनर पीस और साइलेंस की थॉट्स है, उसके चेहरे में कैसा खुशी का, उसका चेहरा मुस्कुराएगा, तो वो चीज़ होता है। अच्छा, ओम शांति।